નમસ્કાર, હું પ્રવીણ. છેલ્લા 6 મહિનાથી ન માત્ર ગુજરાતમાં પરંતુ દેશભરમાં એક મુદ્દો અને એક નામ સૌથી વધારે ચર્ચામાં રહ્યું, એ છે એસઆઈઆર. સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી મુદ્દો ગયો અને એસઆઈઆરની પ્રક્રિયા થઈ. અલગ અલગ રાજ્યોમાં અલગ અલગ મુદ્દા ઉઠતા આવ્યા છે અને એ પ્રક્રિયા વચ્ચે ગુજરાતમાં પણ એસઆઈઆરની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ. પણ આ પ્રક્રિયામાં જે આંકડાઓ આવ્યા એ આંકડાઓ બાદ જે આંકડો આવ્યો એ હતો 73.73 લાખ નામ, એટલે કે મતદાર યાદીમાંથી કમી થયા, દૂર થયા. વાત અહીં ન અટકી. વાત ત્યારે અટકી કેમ કે મતદાર યાદીમાં જો તમારું નામ નથી તો તે પછીની પણ પ્રક્રિયા છે, વાંધો રજૂ કરવાની પણ પ્રક્રિયા છે. એ પ્રક્રિયામાં શું વિપક્ષ આક્રોશ યાતાઓ કાઢતું રહી ગયું, પંચાયતો કરતું રહી ગયું, અને શું ભાજપે ખેલ પાડી દીધો? આ સીધો જ સવાલ ઉઠે છે કેમ કે વિપક્ષ આજકાલ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરે છે અને પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જે શબ્દો અને જે સવાલો ઉઠે છે, કલેક્ટર કચેરીઓના ઘેરાવ થાય છે, તેનો મૂળ મુદ્દો એ છે કે જે નામ કમી થયા તે બાદ મતદારોની જાણ બહાર તેમના નામ કમી કરવાનો ખેલ ચાલી રહ્યો છે. પહેલા સમજી લઈએ કે જે એસઆઈઆરની પ્રક્રિયા થઈ તે બાદ 4.34 કરોડ મતદારો નોંધાયા. 73.73 લાખ મતદારોના નામ મતદાર યાદીમાંથી દૂર થયા. સરકારી આંકડા મુજબ 5.8 કરોડ પૈકી 4.34 કરોડ મતદાતાની ગણતરી સંપૂર્ણ ડિજિટલાઇઝેશન થયું અને ફોર્મ 8 ભરી જરૂરી આધાર પુરાવા રજૂ કરી ઓનલાઈન ઓફલાઈન તમે અરજી કરી શકાય જો તમે નથી માગ્યા. અને વાંધો રજૂ કરવા માટે ફોર્મ 7 ભરીને અરજી કરી શકાશે. હવે આ જે કોના કેટલા નામ કમી થયા એ જે લિસ્ટ આવ્યું તેમાં અવસાન પામેલા 18.07 લાખ મતદારો જેના નામ કમી થયા, ગેરહાજર હતા 9.69 લાખ, કાયમી સ્થળાંતર 40 લાખથી વધુ મતદારોનું થયું. કાયમી સ્થળાંતર સિવાય 2 જગ્યાએ નોંધાયેલા મતદારો 3.81 લાખ હતા અને પ્રેસ નોટ પ્રમાણે જે અન્યનો આંકડો છે 1.89 લાખ. હવે મૂળ મુદ્દો અહીંથી શરૂ થાય છે. એસઆઈઆર શંકાના ઘેરામાં છે. શું 10 લાખ મતદારોના નામ કમી કરાશે? ફોર્મ 7 નો દુરુપયોગ થઈ રહ્યો છે, વિપક્ષ કહી રહ્યું છે. વિપક્ષ આ બધી પ્રક્રિયા પૂરી થઈ પછી કહી રહ્યું છે. શું વિપક્ષ મોડું જાગ્યું? એ આગળ વાત કરીશું કેમ મોડું જાગ્યું. પણ નામ કમી કરવાનું સુવ્યવસ્થિત ષડયંત્ર, રાજ્ય ચૂંટણી પંચનું મૌન, આ સવાલો હવે ઉઠે છે. ચૂંટણી પંચ વિગતો જાહેર નહીં કરે તો વિપક્ષ આંદોલનની પણ ચીમકી ઉચ્ચારે છે. છેલ્લા 3 દિવસથી જે મુદ્દો ગાજી રહ્યો છે, અલગ અલગ જગ્યાએ કલેક્ટર કચેરીઓનો ઘેરાવ થઈ રહ્યો છે. ભાજપે 2.70 લાખથી વધુ મતદારોના નામ ઉમેરવા માટે ફોર્મ ભર્યા. એટલે કે મતદારો જો ઉમેરવા હોય, સપોઝ કે તમારું નામ નથી મતદાર યાદીમાં, તમે આ દેશ અને રાજ્યના નાગરિક છો સમહાવ, તો તમને હક છે એ પ્રક્રિયા મુજબ કે તમે નામ ઉમેરાવી શકો. પણ કોંગ્રેસ, આપ કે વિપક્ષ શું ઊંઘી રહ્યું હતું? હવે જ્યારે સવાલ કરી રહ્યા છે, સવાલ રાજ્ય ચૂંટણી પંચ પર તો છે જ, ગંભીર આક્ષેપો એ પણ છે કે બીએલઓ પર રાજકીય દબાણ ઊભું કરાવીને આ ખેલ થઈ રહ્યો છે. આ ખેલ સામે સવાલ તો છે, પણ ખેલ જો થઈ જ રહ્યો છે તો એ ખુલ્લો પાડવાની જવાબદારી પણ વિપક્ષની છે. મીડિયાની તો બટ ઓબ્વિયસ છે જ, જેટલા ધારદાર સવાલ પૂછવાના હોય તો પૂછાશે જ. પણ વિપક્ષ અત્યાર સુધી ગયું ક્યાં હતું? શું દારૂ ડ્રગ્સ મુદ્દે જે આક્રોશ રેલીઓ ચાલી રહી હતી, ખેડૂત પંચાયત ચાલી રહી હતી, એ પણ મુદ્દાઓ જરૂરી છે. પણ શું એમાં જ વ્યસ્ત રહેવું? પડદા પાછળ કોઈ ટીમ ન હતી? વિપક્ષ આટલું મોટું છે, નંબર વાઇઝ નહીં આંકડા વાઇઝ જેટલો દાવો થાય છે અને પછી કમ્પ્લેન થાય છે. હવે ફોર્મ 7 ભરી 9.58 લાખ મતદારોના નામ રદ કરવા અરજી થતા વિપક્ષની ઊંઘ હરામ થઈ. મૂળ મુદ્દો એ છે, પહેલો મુદ્દો એ છે કે 2.70 લાખ જે ફોર્મ છે એ ભાજપ તરફથી ભરાયા એવો દાવો છે અને 9.58 લાખ આ જે ફોર્મ જે છે એ જે નામ ઓલરેડી મતદાર યાદીમાં છે તેને રદ કરવા માટે અરજી થઈ છે. ત્યારે વિપક્ષ જાગ્યું. તો આ ખેલ ખરેખર થઈ શું રહ્યો છે? કેમ કે દરેક બેઠક પરથી 10 થી 15 હજાર મતદારોના નામ રદ કરવાના ઈરાદે આ ફોર્મ ભરાઈ રહ્યા છે તેવું વિપક્ષનું કહેવું છે. કેમ કે શબ્દશઃ વાંચી રહ્યો છું જે અમિત ચાવડાથી માંડી, ઈસુદાન ગઢવીથી માંડી, જેને પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી, અને આંકડો તો છે જ. હવે ઓછી સરસાઈવાળી બેઠક પર ભાજપે નવા મતદાર ઉમેરવા માટે ફોર્મ ભર્યા તો વિપક્ષને શું એ પણ ડર છે
કે જેટલું બચ્યું છે એટલોમાં મારો પણ એકડો નીકળી જશે અને વેરિફિકેશન છતાં 9 લાખ વાંધા અરજીઓ શંકાસ્પદ છે. કેમ કે તમે પ્રેસ નોટ વાંચશો તેમાં અંદાજો આવશે કે આટલા દિવસમાં 1.5 મહિનામાં આટલા બીએલઓ, આટલો સ્ટાફ, બધાએ ડોર ટુ ડોર કેમ્પેન કરી, બધાએ સરસ મજાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી અને જે આંકડો આપ્યો 4.34 કરોડ મતદારોનો, એ ખુદ સરકાર કહી રહી છે, રાજ્ય ચૂંટણી પંચ કહી રહ્યું છે કે અમે ડોર ટુ ડોર વેરિફિકેશન કર્યું છે. તો સવાલ એવું છે કે 9 લાખથી વધુ જે ફોર્મ ભરાયા છે, જે મતદાર યાદીમાં નથી, એ છે ક્યાં? તો ખરેખર શું વિપક્ષ યાત્રાઓમાં વ્યસ્ત રહ્યું અને ભાજપે ખેલ કરી નાખ્યો કે મુદ્દો અલગ છે? કદાચ આ મુદ્દાને વધુ સારી રીતે સમજવા માટે આપણી સાથે જે મહેમાન જોડાશે, સુપ્રીમ કોર્ટમાં તમામ જજીસ સામેની દલીલ આખા દેશે સાંભળી, યોગેન્દ્ર યાદવ, સેફોલોજીસ્ટ કહો, સોશિયલ એક્ટિવિસ્ટ કહો કે જમીન પર આંકલન કરતા એ વ્યક્તિ કરો, યોગેન્દ્ર યાદવ આપણી સાથે જોડાશે કેમ કે એસઆઈઆરમાં શરૂઆતથી એ લડી રહ્યા છે. योगेंद्र जी, आपका स्वागत है. नमस्कार प्रवीण भाई, आप मेरे को पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ही कहते हैं, वही शायद ठीक होगा. नहीं, क्योंकि नहीं सर, बदलते वक्त के साथ बेहतर डिस्क्रिप्शन है जी. ओके, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे योगेंद्र यादव जी. वैसे तो चेहरा सब जानते ही है और मतलब जिस तरह से बेबाक तरीके से बोलते हैं, जो चीज़ें हैं ज़मीन पर जो दिखती है उसको बोलना भी ज़रूरी होता है. योगेंद्र जी, आपका जो लास्ट वीडियो देखा था उसमें आपने एक बात कही थी, जो पिछली बार एसआईआर हुआ वो किस प्रक्रिया से हुआ था, वो चीज़ के बारे में कोई गाइडलाइन या कैसा हुआ था ऐसा कुछ इलेक्शन कमीशन ने दिया नहीं था. मतलब आप निकाल के ले आए थे जिस चीज़ का जिक्र हो रहा था कि भाई ये तो पहले भी हो चुका है. लेकिन उसके बाद जो गुजरात में सर हो रहा है, एक तो 73 लाख से ज़्यादा जो वोटर्स है उसके नाम कटे, ऊपर से विपक्ष सोया रहा और 10 लाख के आसपास और नाम काटे जा सकते हैं, क्योंकि सीधा आरोप ये है विपक्ष का कि बीजेपी जो सत्ता में है उसके 2.70 लाख जो वोटर्स है उसका नाम ऐड करने के लिए फॉर्म भरे गए, और दूसरी बात कि फॉर्म 7 है उसका दुरुपयोग हो रहा है. 9 लाख से ज़्यादा फॉर्म नाम रद्द करने के लिए भरे गए. तो ये मामला क्या है अभी तक? क्या ये दिक्कत अभी शुरू ही हुई है क्या फिर, या फिर वोटर से उसको बारीकाई से देखना पड़ेगा कि सही में मेरे साथ क्या हो रहा है? ये खेल क्या है पूरा? नमस्कार प्रवीण भाई, बहुत बहुत धन्यवाद. मैं तो स्वयं गुजरात के आंकड़े देख के चकित हूं और इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से गुजरात के दर्शकों को ये एसआईआर का खेल समझाया जाए. और जब जरूरत हो आप मुझे रोक के गुजराती में ट्रांसलेट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं गुजराती समझ तो सकता हूं. आप जो बोल रहे थे मैं सारा समझ पा रहा था जी, क्योंकि हिंदी मेरी माँ है तो गुजराती मौसी हुई ना, तो इसलिए समझ तो पाता हूं लेकिन बोल नहीं पाता. जब जरूरत हो आप रोक के जरा बोल के समझा दीजिएगा. ओके. आप देखिए, सबसे अभी जो पिछले 2-3 दिन में हुआ है उस पर मैं बाद में आऊंगा. पहले आपको बेसिक आंकड़ा बता दूं मैं. गुजरात में जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई उस समय गुजरात की वोटर लिस्ट में कुछ 5 करोड़ 8 लाख मतदाता थे. 5 करोड़ और 8 लाख. क्या जरूरत से ज्यादा मतदाता थे? क्या काटने की आवश्यकता थी? नहीं. दरअसल जरूरत से कम मतदाता थे गुजरात में, क्योंकि गुजरात की जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसकी संख्या हमें पता है और ये चुनाव आयोग ने नहीं बताई. ये भारत सरकार, मोदी जी की नेतृत्व में चलने वाली भारत सरकार की एक्सपर्ट कमेटी ने हर राज्य की जनसंख्या बताई है और जनसंख्या में एडल्ट वयस्क कितने हैं, यानी कि वोटर का अधिकार कितनों को होना चाहिए, वो सरकार ने स्वयं आंकड़े जारी किए हैं. उस आंकड़े के हिसाब से प्रवीण भाई 1 जनवरी 2026 को गुजरात की वयस्क आबादी है 5 करोड़ 32 लाख, और एग्जैक्ट कहूं 5 करोड़ 31 लाख 50 हजार. ये गुजरात की वयस्क आबादी है. इसका मतलब है गुजरात में कितने वोटर होने चाहिए? कुल 5 करोड़ 32 लाख वोटर होने चाहिए. जब एसआईआर शुरू हुआ तो कितने थे? 5 करोड़ 8 लाख. मतलब कम थे. अगर अच्छा रिवीजन होता तो कुल मिला के 24 लाख वोटर जुड़ने चाहिए थे. हुआ क्या? 73 लाख और कुछ वोट कट गए. तो जो मामला बढ़ना चाहिए था वो उल्टी दिशा में घटा है. तो गुजरात में जहां
5,32,00,000 वोट होने चाहिए थे, वहां अब एसआईआर के बाद 4,34,00,000 रह गए हैं। मतलब लगभग 1 करोड़ वोट की कटौती है गुजरात में इस वक्त। केवल 74 लाख नहीं है। पहली बात तो मैं ये समझाना चाह रहा था कि गुजरात में लगभग 1 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट पे होना चाहिए और जो कि आज की तारीख में नहीं है। स्कैंडल नंबर 1। दूसरी बात, ये जो हुआ है ये अभूतपूर्व 2 मायने में है, क्योंकि चुनाव आयोग खुद कहता है कि 40 लाख लोगों का नाम इसलिए कट गया है क्योंकि वो परमानेंटली अवे हैं गुजरात से। अब मजे की बात यह है प्रवीण भाई कि ये बात बिहार के बारे में आप कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में कह सकते हैं, क्योंकि वहां से आउट माइग्रेशन होता है, लोग छोड़ छोड़ के बाहर निकलते हैं क्योंकि वहां रोजगार नहीं। भारत के नीति आयोग के अनुसार गुजरात इन माइग्रेशन स्टेट है। मतलब वो राज्य है जहां बाहर जाने वालों की संख्या कम है, तो अंदर आने वालों की संख्या ज्यादा है। तो गुजरात में आउट की वजह से 40 लाख लोगों का नाम कट गया। लगभग 10%, 8% के करीब लोगों का नाम केवल इस आधार पे कट गया। यह असाधारण घटना है। नंबर 3, तो स्कैंडल नंबर 2 ये है कि इन माइग्रेशन स्टेट के अंदर कह रहे हैं माइग्रेशन की वजह से इतने 40 लाख लोग चले गए, ये असंभव नहीं है। स्कैंडल नंबर 3, गुजरात में एसआईआर के कारण महिलाओं का अनुपात घट गया है और ये बहुत बहुत चिंता की बात है। पहले गुजरात में जब एसआईआर शुरू हुआ था उस समय गुजरात में हर 1,000 पुरुष के पीछे 954 महिलाएं थी, 954 जेंडर रेशो जो वोटर लिस्ट में था। एसआईआर के बाद 933 हो गया, 933। मतलब एसआईआर के चलते 21 पॉइंट कम हो गया है। मोटी भाषा में कहूं तो 5 लाख एडिशनल औरतों का नाम कट गया है जो नहीं कटना चाहिए था। तीसरा स्कैंडल। अब हम आते हैं जो खेल हो रहा है उसके बाद। ये तो ड्राफ्ट लिस्ट से पहले हो गया, जो 74 में आप बात कर रहे हैं ना, उसमें ही ये 3 बड़े बड़े खेल हो चुके हैं। अब हम जो चर्चा कर रहे हैं, जो आप अपने परिचय में बता रहे थे कि ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद क्या खेल है। ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद भी नाम कट सकते हैं। जिन 4,34,00,000 का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में आ गया है, गारंटी नहीं है कि उनका नाम फाइनल में आएगा। उसमें 2 तरह की कटौती हो सकती है। या तो चुनाव आयोग उनको नोटिस देके, या तो वो कहेगा आपका नाम मैप्ड नहीं है का मतलब 2002 में आपका अपना नाम या आपके पिता या दादा का नाम नहीं था, इसलिए हम आपको नोटिस भेज रहे हैं, आप अपनी नागरिकता साबित कीजिए। आजकल इसका एक नया तरीका चुनाव आयोग ने निकाला है कि लॉजिकल फैलेसी, कि हमारे सॉफ्टवेयर ने चेक किया और हमारे सॉफ्टवेयर को लगा कि कुछ गड़बड़ है आपके नाम में, आप आके सुझाव। अमर्त्य सेन का नाम इसी आधार पर काटा गया था। एक तो ये तरीका है काटने का कि चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस आएगा, आपको देना पड़ेगा। उसकी संख्या गुजरात की क्या है वो आपको पता होगा, मुझे पता नहीं है नोटिस कितने लोगों को जारी हुआ है। दूसरा तरीका यह है कि आपके नाम पर आपत्ति हो। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के नाम पे आपत्ति कर सकता है। नियम यह है कि आपत्ति करने वाला उसी पोलिंग बूथ का होना चाहिए। कोई बाहर का व्यक्ति आपत्ति नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत विशेष प्रक्रिया है। उसी पोलिंग बूथ का व्यक्ति होना चाहिए आपत्ति करने वाला। थोड़ा बहुत आपत्ति वो भी होता है। ये जो गुजरात में आप आंकड़ा बता रहे हो 9 करोड़ कितने लाख, 9 लाख कितने हजार जो कि आपत्ति आई, हाँ, 9,57,000। 9,57,000 अभूतपूर्व आंकड़ा है ये। मैं आपको तुलना के लिए बताता हूं। बिहार गुजरात से लगभग 2 गुना बड़ा है संख्या में, आबादी के हिसाब से। बिहार में टोटल 4 लाख आपत्ति आई थी। राजस्थान और गुजरात लगभग बराबर है राज्य है अपनी जनसंख्या के हिसाब से, ठीक है। राजस्थान में भी अभी ये प्रक्रिया पूरी हुई है। राजस्थान में टोटल आपत्तियां आई हैं 1,19,000 और गुजरात में 9,58,000। ये अभूतपूर्व है, असामान्य है, बहुत बड़ा राजनीतिक खेल हो रहा है। नहीं तो ये हो ही नहीं सकता। बंगाल में, जो कि गुजरात से इतना बड़ा है, बंगाल में अब तक 1 लाख आपत्ति नहीं है। तमिलनाडु में भी 1 लाख आपत्ति नहीं है। केवल और केवल गुजरात में इतनी बड़ी संख्या में आपत्ति का आना, यह बहुत बड़ा खेल दिखाता है।
और जिसके प्रति मैं चाहूंगा कि राजनीतिक दल सतर्क हो जाएं, क्योंकि बीजेपी और चुनाव आयोग तो बिल्कुल मिले हुए हैं इस वक्त, और ये जो खेल हो रहा है बहुत खतरनाक खेल है। मैं एक चीज की तरफ आपका ध्यान और आकृष्ट करना चाहूंगा, और वो ये है कि चुनाव आयोग का नियम है, ये चुनाव आयोग का जो एक वो है मैनुअल ऑफ इलेक्टोरल लॉज एंड रूल, मैनुअल ऑफ इलेक्टोरल रूल्स, उसके नियम में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अगर फॉर्म 7 के तहत कोई भी आपत्ति दर्ज की जाती है, 9,57,000 जो हुई है, प्रत्येक नाम को वोट को आपको वेबसाइट पे दिखाना अनिवार्य है। और क्या क्या सूचना होनी चाहिए उसमें? होना चाहिए किस व्यक्ति के नाम पर आपत्ति हुई, किस कारण से आपत्ति हुई, जिस पर आपत्ति हुई उस व्यक्ति का एपिक कार्ड का नंबर क्या है, आपत्ति करने वाला व्यक्ति कौन है, उसका एपिक कार्ड क्या है, ये सारी सूचना आपको वेबसाइट पे दिखनी चाहिए। सर एक मिनट तो आपने बहुत सही बात कही कि मतलब फॉर्म 7 का जो दुरुपयोग की बात हो रही है, विपक्ष अभी यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमें सीसीटीवी चाहिए, राज्य जो चुनाव आयोग है वो डेटा नहीं दे रहा है। फिर से डेटा की बात आ गई कि भाई 9,58,000 के आसपास अगर फॉर्म 7 भरे गए हैं तो उसका डेटा मांग रहा है विपक्ष अभी जग के। और दूसरी बात ये जोड़ दूं कि जो 2,70,000 जो वोटर्स है जिसको मतलब ऐड करने के लिए फॉर्म भरे गए हैं, 2001-2 में सर ये आंकड़ा 1,19,000 के आसपास था। तो ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और विपक्ष को अलग ही मांग कर रहा है। ये जो जोड़ने का आंकड़ा 2,70,000 जितना भी आप बता रहे हैं, वो मुझे इतना हैरानी का आंकड़ा नहीं लगता। क्योंकि यदि इसमें दो तरह के लोग होंगे, ऐसे जिनका नाम जुड़ने से रह गया होगा, नए लोग, और इसमें कई ऐसे लोग होंगे जिनका नाम 74 लाख में है, जिनका नाम कट गया और वो पहुंचे बीएलओ के पास कि मेरा नाम क्यों काट दिया। तो बीएलओ ने कहा आप छोड़ दो, तुम चुपचाप से फॉर्म 6 भरो और अपना नाम कर दो। अभी झूठ है, क्योंकि फॉर्म 6 वही व्यक्ति को भरना चाहिए जो कि न्यू वोटर है, जो आज तक कभी वोटर नहीं रहा। लेकिन चुनाव आयोग ये फ्रॉड पूरे देश में करवा रहा है। किसी का नाम कट जाता है, वो बीएलओ के पास जाता है, बीएलओ कहता है कि तुम क्यों बेकार में हल्ला कर रहे हो, तुम फॉर्म 6 भर दो, मैं तुम्हारा नाम जुड़वा दूंगा। तो इस 2 लाख में कई लोग ऐसे होंगे जिनका नाम 74 लाख में कटा है, वो चुपचाप से पिछले दरवाजे से वापिस आ रहे हैं। तो 2 लाख वाला आंकड़ा इतना हैरानी का नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। बहुत बड़ी हेराफेरी या गड़बड़ मुझे उसमें दिखाई नहीं दे रही। गड़बड़ मुझे दिखाई दे रही है 9,57,000 के आंकड़े में, क्योंकि आमतौर पे जितना जुड़ने का आंकड़ा होता है उसका आधा होता है कटने का आंकड़ा। यहां जुड़ने का आंकड़ा है 2-2.5 लाख, काटने का आंकड़ा है 9-9.5 लाख। ये बहुत विचित्र है, किसी प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा, कम से कम मैंने कहीं पे भी ऐसा नहीं सुना। इसके पीछे जरूर कोई खेल है, और मैं चाहता हूं कि विपक्ष, ठीक है आप सीसीटीवी फुटेज मांग लीजिए, आपका अधिकार है, आप कहिए कि पार्टी को मिलना चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप सीईओ गुजरात की वेबसाइट पे जाइए, वहां फॉर्म 10 का आंकड़ा दिया हुआ है, मैंने खुद चेक किया है, फॉर्म 10 का आंकड़ा है वहां पे, उसको चेक कीजिए। अगर उसमें कोई कमी है तो तुरंत पॉइंट आउट कीजिए और उसका आंकड़ा वहां से डाउनलोड करके अपने वर्कर के पास भेजिए। ये बात विपक्ष का कहना बिल्कुल सही है कि केवल फॉर्म 10 का आंकड़ा वेबसाइट पे डालने से चुनाव आयोग की जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती। चुनाव आयोग को हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में बुलाकर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को ये लिस्ट देने की हिदायत है। याद रखिए, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में हूं, मान लिया मोरबी में रहता हूं, मेरे यहां से 10,000 एप्लीकेशन आए कि इन लोगों का नाम काट दिया जाए, तो जो मोरबी का ये ईआरओ है, आमतौर पे एसडीएम होता है ईआरओ, उसकी कानूनी जिम्मेवारी है कि वो पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाकर उनके हाथ में ये लिस्ट दे, और वो लिस्ट देने के 1 सप्ताह के बाद ही उस पर कोई निर्णय हो सकता है, ताकि उनको इस ऑब्जेक्शन पर ऑब्जेक्शन करने का 1 सप्ताह का समय मिले। तो वो सही है विपक्ष का मांग करना, लेकिन अभी तुरंत मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप सीईओ वेबसाइट पे जाइए, उन्होंने छुपा के डाल रखा है फॉर्म 10 का डेटा, लेकिन डाल रखा है, उसको तलाश ढूंढिए। आप मीडिया वाले हैं, आपको भी मैं अनुरोध करूंगा, वो देखिए, उसमें विधानसभा वार लिस्ट है, किन किन लोगों के नाम पर ऑब्जेक्शन हुआ है। याद रखिए,
उसमें आपको सारी सूचना मिलेगी, किसने ऑब्जेक्शन किया है, किसके नाम पर ऑब्जेक्शन किया है, किस आधार पर ऑब्जेक्शन किया है, ये सारी सूचना उपलब्ध है। उसका यदि आप विश्लेषण करेंगे, जो कि हमने बिहार में किया था, तो हमें इतनी विसंगतियां प्राप्त हुई थी, और मुझे विश्वास है कि गुजरात में अगर आप विश्लेषण करेंगे तो उससे इलेक्शन कमीशन जो फ्रॉड कर रहा है वो आपके सामने आ जाएगा। आखिरी बात, जो विपक्ष में भरूच का ही एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जहाँ पर एक ही समाज के काफ़ी सारे लोगों के नाम काटे गए, तो उसमें एक वहाँ के नेम भी थे, उसका भी नाम काटा गया। बाद में पूरा प्रूफ के साथ वो कलेक्टर के पास गए। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि जहाँ पर बीजेपी की लीड कम है, वहाँ पे नाम जोड़े जा रहे हैं या फिर काटे जा रहे हैं। दिक्कत वहाँ पे ये है कि जो जोड़े जा रहे हैं वो सत्ता के फेवर में जोड़े जा रहे हैं, जो काटे जा रहे हैं वो हमारे काटे जा रहे हैं। तो ये जो पेच शुरू हुआ, अब मैं यही समझना चाहूँगा, आपने फॉर्म 10 का या फिर जो भी एक पाथ दिया कि आप यहाँ पे जा सकते हो और वहाँ से, तो ये तो विपक्ष को भी अंदाज़ा होगा। लेकिन पर्टिकुलरली सवाल यही उठता है सर कि कभी कभार क्या विपक्ष मतलब इतनी गहरी नींद में सोया हुआ होता है कि एसआईआर में तो पहले से ये दिक्कत चल रही है, मतलब सवाल काफ़ी सारे हैं, ये तो प्रक्रिया पूर्ण हो गई, उन सब के बीच में अब जाके एक आध दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। मतलब विपक्ष अगर मुद्दा उठाता है तो विपक्ष को भी क्या अवेयर होने की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए एक खेल बिल्कुल खुला है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी दोनों का हेडक्वार्टर एक है, दोनों एक साथ मिलकर ऑपरेट कर रहे हैं, और हर राज्य में एक खेल हो रहा है। पश्चिम बंगाल में भी यही खेल हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी यही खेल हो रहा है। कुल मिलाकर पहले बार जो कटे वो तो कट गए, उसके बाद हर राज्य में ये खेल है कि बीजेपी जिनका नाम कटवाना चाहती है उनका नामों का एप्लीकेशन आ रहा है, फटाफट बीएलओ उसको एक्सेप्ट कर रहा है, ईआरओ उसको ओके कर रहा है, और जिन जिन का नाम जुड़वाना चाह रहे हैं उनका नाम भी दनादन जोड़ा जा रहा है। तो ये वाला खेल हर राज्य में हो रहा है, और इसका एक ही तरीका है कि विपक्ष सजग हो, विपक्ष तुरंत अपना ऑब्जेक्शन करे, और जिन लोगों का नाम जुड़वाना चाहिए विपक्ष के लोग भी तो उसका नाम दें। उनके पास भी बीएलओ है, उनके पास भी कानूनी अधिकार है वो नाम देने का। तो बीजेपी 2 नंबर का काम बहुत कर रही है, लेकिन बीजेपी 1 नंबर का काम भी कर रही है, और विपक्ष 2 नंबर पर ऐतराज कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन 1 नंबर का काम तो विपक्ष भी कर सकता है ना। विपक्ष भी फाइल कर सकता है कि इतने लोगों का नाम जोड़ना चाहिए। जिन लोगों का नाम कटने के लिए एप्लीकेशन आया है उनके विरुद्ध विपक्ष अपनी एप्लीकेशन दे सकता है कि ये उनका नाम नहीं कटना चाहिए। इस सब के लिए सजगता चाहिए, इस सब के लिए संगठन चाहिए, और अगर विपक्ष ये नहीं करेगा तो उसे बहुत भारी नुकसान होगा। और ये भी चीज़ सही है कि नहीं, जिन लोगों के नाम कटे या फिर वो तो व्यक्तिगत रूप से उनको हानि होगी ही होगी, लेकिन अगर विपक्ष हो हल्ला कर रहा है, लेकिन हो हल्ला भी ज़रूरी है, वो साथ में एक प्रक्रिया की तरह जाना भी ज़रूरी है। शायद आप यही बात कर रहे हैं। 1 ही मिनट बचा है सर, आपका कंक्लूडिंग कमेंट। जी, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि इस वक्त गुजरात में बहुत बड़ा खेल हो रहा है, और ये खेल ये है कि चुनाव की पात्रता, वोट देने की पात्रता में ही बीजेपी के पक्ष में थोड़ा सा झुकाव आ जाए। 10-20 लाख का यदि परिवर्तन हो गया, मान लीजिए 74 लाख जो कटे हैं और ये 9 लाख जो और काट रहे हैं, कुल मिला के कोई 85 लाख के करीब नाम कटेंगे। उसमें यदि बीजेपी को 15-20 लाख का फायदा हो गया, और विशेष तौर पर उस मतदार संघ में हुआ जहां बीजेपी का मार्जिन कम था या बीजेपी हारी थी, तो बस चुनाव तो पलट गया ना इतने में। ये बहुत बड़ा खेल है, नागरिकों को सतर्क होना चाहिए, नागरिक संगठनों को सतर्क होना चाहिए, पार्टियों को सतर्क होना चाहिए। और जो पिछले 3 दिन का खेल है, मैं फिर आपसे अनुरोध करूंगा, फॉर्म 10 के जितना भी डेटा सीईओ गुजरात की वेबसाइट पर है उसे डाउनलोड कीजिए। चुनाव आयोग से मांग कीजिए कि एसडीएम को, पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाकर उनके हाथ में ये लिस्ट देनी होगी, ये अनिवार्यता है कानून के तहत। ये सब मांग कीजिए और इसके विरुद्ध आप कीजिए। अगर कमर नहीं कसे, आप केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस और यात्रा करते रह गए तो खेल खत्म हो जाएगा। धन्यवाद योगेंद्र जी, काफ़ी शॉर्ट नोटिस पर आप जुड़े हमारे साथ। आगे भी इस मुद्दे पर हम बात करते रहेंगे, तो एक टेक्निकल चीज़ लोगों तक पहुंचे और जो भी विपक्ष मांग कर रहा है शायद उनको भी थोड़ा रास्ता मिले, यही अपेक्षा रख रहे हैं। धन्यवाद योगेंद्र जी, जीएसटीवी के साथ जुड़ने के लिए। તો યોગેન્દ્ર યાદવે જે વાત કરી, કદાચ ગંભીરતાથી વિપક્ષે પણ વિચારવાની જરૂર છે ફોર્મ 10ની વાત. માત્ર હો હલ્લાથી કશું નહીં થાય અને મોડા જાગ્યા છે
અને ખબર છે કે સ્થિતિ કંઈક ખોટું થઈ રહ્યું છે ને ખેલ થઈ રહ્યો છે. જો એવા આક્ષેપ વિપક્ષ કરતું હોય કે 10 કે 15,000 વોટ એક વિધાનસભામાંથી કાપવામાં આવી રહ્યા છે, તો ફોર્મ 10 થી માંડીને જે પ્રક્રિયાની વાત કરી, શું એ પ્રક્રિયા પણ વિપક્ષ ફોલો કરી રહ્યું છે કે પછી સંઘર્ષ યાત્રા અને પંચાયતોમાં વિપક્ષ વ્યસ્ત રહ્યું અને ખેલ થઈ ગયો? અને ખેલ થઈ ગયો પછી જે રીતે યોગેન્દ્ર યાદવે વાત કરી કે માત્ર પ્રેસ કોન્ફરન્સ અને યાત્રા કરવાઓથી કશું નહીં થાય. જો તમને સવાલ છે અથવા તો તમને લાગે છે કે કંઈક ખોટું થઈ રહ્યું છે ને તમારે વિપક્ષ તરીકે જનતાનો અવાજ બનવું છે, તો કદાચ એ પ્રક્રિયા પણ ફોલો કરવી પડશે. નમસ્કાર.